Adjoint of a matrix Aij n cross n. N cross n means it must be a square matrix. Is defined as transpose of the matrix Aij n cross n. Here it is capital Aij, where capital Aij is a cofactors of small aij. क्या करना है, अगर आपको एडजॉइंट किसी मैट्रिक्स का निकालना है तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा इनका कोफैक्टर. एडजॉइंट A is given by A11, A12, A21, A22 whole transpose, and for 3 by 3 capital A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 and A33 whole cofactors and transpose. तो ट्रांसपोज लेना है आपको कोफैक्टर्स निकाल के. एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना है 1, 2 and 3, 4. एडजॉइंट निकालने के लिए हमें सभी के क्या निकालने हैं, कोफैक्टर्स. तो कैपिटल A11 will be -1 raised to power 1 plus 1. Its minor is 4. You will write 4. A12 -1 raised to power 1 plus 2. And minor of 1, 2 is 3. It will be -3. A21 -1 raised to power 2 plus 1. Minor of A21 is 2. It will be -2. And A22 -1 raised to power 2 plus 2. Its minor is 1. It is +1. So what is adjoint A? Adjoint A is A11, A12, A21, A22 whole transpose. Now you will substitute the values. Now transpose of this matrix is this. Now next is adjoint of this matrix. Now you will calculate cofactors -1 raised to power 1 plus 1, and the minor of A11 will be 1, -1, -3 and 2. This is 2, 2 minus 3, it is -1. A12 -1 raised to power 1 plus 2. Minor is 2 minus 1, 4, 2. It is -1, 4 plus 4, that is -8. A13 -1 raised to power 1 plus 3. Minor is 2, 1. It is -6, -4, -10. पिछली वीडियो में मैंने आपको माइनर कोफैक्टर इसी के बताए हैं, तो आप इसको सेम उसी तरह कैलकुलेट करना है. A21 -1 raised to power 2 plus 1. Minor is -2, 3, -3, 2. -4 plus 9. It is 5. It is -5, sorry. A22 -1 raised to power 2 plus 2. Minor is 3, 3, 4, 2. It is 6 minus 12. It is -6. A23 -1 raised to power 2 plus 3. Minor is 3 minus 2, 4 minus 3, -9 plus 8. It is +1. A31 -1 raised to power 3 plus 1. Minor is -2, 3, 1 minus 1. It will be 2 minus 3, that is -1. Next, A32 -1 raised to power 3 plus 2. Minor is 3, 2, 3 minus 1 is -3 minus 6. It was +9. And A33 -1 raised to power 3 plus 3. Minor is 3, 2 minus 2, 1 is +3 plus 4.
it is 7. Now we have calculated all the minors and cofactors of this matrix. How will you calculate adjoint A? Adjoint A is transpose of cofactors. Now you will write all the cofactors at the proper place, and then you will take transpose of that matrix. A11 is -1, -8, -10, -5, -6, 1, 1, -1, and here it is 5 -6, 1, -1, 9, and 7. You will take the transpose. And this is adjoint of a matrix. अब देखिए एक प्रॉपर्टी है A into adjoint A into A is equal to determinant A into I. अब ये प्रॉपर्टी कैसे वेरीफाई करेंगे? लेट हम एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स A11, A12, A13, A21, A22, A23 एंड 31, 32, 33. अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या होंगे? कैपिटल A11, कैपिटल A12, A13, और उसका अगर मैं एडजॉइंट लिखूं, एडजॉइंट क्या होता है? कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज. तो कोफैक्टर अगर मैं A11 कॉरस्पॉन्डिंग लिखें तो यही बनेंगे आपके A22, A23, A31, A32, A33. अब इसका हमें ट्रांसपोज देना है तो ये आ जाएगा कैपिटल A1, A13, A21, A22, A23 एंड सिमिलरली ये हम लिख लिया. अब प्रॉपर्टी हमने कौन सी वेरीफाई करनी है? A इंटू एडजॉइंट A, A इंटू एडजॉइंट A. अब A देखिए क्या है? A is A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. अब इसका एडजॉइंट क्या बनेगा? ये है A21, A22, A23 एंड सिमिलरली. अब आप इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें. क्या आएगा? मैं एक मल्टीप्लाई कर रहा हूं. A11 कैपिटल A11, A12 कैपिटल A12, A13 कैपिटल A13 एंड ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं. A21 कैपिटल A22 with A12, A23 with A13. सिमिलरली हमने जैसे ये मल्टीप्लाई कर लिया. अब देखिए ये है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम विद अ कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर. तो वो किसके इक्वल होता है? डिटरमिनेंट. आपने पिछले वीडियो में देखा था माइनर और कोफैक्टर वाली में, अगर तो वो कॉरस्पॉन्डिंग है, अगर ये एलिमेंट और कोफैक्टर कॉरस्पॉन्डिंग है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? डिटरमिनेंट A. अगर वो नहीं है अदरवाइज उसका आंसर क्या आएगा? 0. तो ये 0 है, ये भी सेम नहीं है, 0. ऐसे ही ये देखिए ये कॉरस्पॉन्डिंग है सभी के, तो ये डिटरमिनेंट A आ जाएगा 0. ये कॉरस्पॉन्डिंग नहीं है 0, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग नहीं है 0, और यहाँ पे डिटरमिनेंट A आ जाएगा. तो अब डिटरमिनेंट A यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचा 1, तो इट इज डिटरमिनेंट A इंटू I. तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है. A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट A इंटू I. अब देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? अ मैट्रिक्स A is said to be singular if determinant of that matrix is 0, and नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? if determinant is not equal to 0. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे बोलूं फाइंड द वैल्यू ऑफ x such that this matrix 2, 5, x, 6 is singular. What is the property of a singular? अब ये मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है उसका डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए. तो मैं इसका कॉरस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट इवैल्यूएट करता हूं. तो डिटरमिनेंट क्या आएगा? 12 minus 5x, and for singular it is
0, तो x इज इक्वल टू 12/5। अब एक नोट दिमाग में रखना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट। इसका मतलब क्या है, ए और बी का प्रोडक्ट है, इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, उसका डिटर्मिनेंट ले लें तो वो इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट के इक्वल आता है। अब इस रिजल्ट को मैं यूज करके एक रिजल्ट और ड्राइव करूंगा। अब आपको पता है a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू आई, ये प्रॉपर्टी अभी हमने ड्राइव की है। अब इस रिजल्ट को हम यूज करके एक रिजल्ट ड्राइव करेंगे। देखिए a इंटू एडजॉइंट a और एडजॉइंट a इंटू a, डिटर्मिनेंट a इंटू i इज 1 0 0 1 0 एंड 0 0 1। अब इसमें डिटर्मिनेंट a को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बनेगा क्या, 0 0 डिटर्मिनेंट a। अब ये मैट्रिक्स है तो ये मैट्रिक्स में ये मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं। यहां तक क्लियर है। अब यहां पे आपका एडजॉइंट a इंटू a है। अगर मैं यहां पे दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लूं तो ये यहां भी डिटर्मिनेंट आ गया और ये पूरे का भी डिटर्मिनेंट बन जाएगा हमारे पास। देखिए अब यहां मैं प्रॉपर्टी ये यूज करूंगा, a इंटू बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू डिटर्मिनेंट बी। इसी तरह हमने इंडिविजुअल कर दिया। अब यहां क्या है आपके पास, यहां हमारे पास डिटर्मिनेंट है। अगर मुझे डिटर्मिनेंट में से कोई स्केलर कॉमन लेना हो तो वो इंडिविजुअली हर रो और कॉलम में से कॉमन आएगा। तो मैं यहां से अगर a कॉमन आउट लेता हूं, डिटर्मिनेंट a यहां से ले लिया तो ये बनेगा 1 0 0, ये यहां से कॉमन आया। अगर इंडिविजुअली यहां से भी कॉमन आएगा तो यहां क्या बनेगा, इट विल बी स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, यहां पे 2 आ जाएगी पावर। अगर मैं यहां से भी कॉमन ले लूं तो यहां पावर क्या हो जाएगी, 3। और ये डिटर्मिनेंट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, तो उसका वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट a डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट इसके इक्वल आ गया। अब यहां से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं ये पावर, तो एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a स्क्वायर। अब ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, इट इज ऑफ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स 3। अगर हमारे पास ऑर्डर यहां पे जनरलाइज करेंगे इन जनरल, अगर यहां पे मैट्रिक्स हो ऑफ ऑर्डर n, अगर ऑर्डर n हो तो आप क्या करेंगे, एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a की पावर n-1। ध्यान से देखिए, अगर यहां पे 3 था, ऑर्डर 3 था, तो यहां पे पावर में क्या आ रहा है, 2। अगर यहां पे ऑर्डर 2 होता तो यहां 1 आता, अगर यहां ऑर्डर n होता तो यहां क्या होता, n-1। ये प्रॉपर्टी आपकी बहुत कॉमनली यूज होगी, 1 मार्क क्वेश्चंस इसमें बहुत सारे आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर एक छोटा सा क्वेश्चन लूं, यहां पे लिखता है इफ a इज अ मैट्रिक्स, और इफ a इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 and determinant a is equal to 5, find adjoint a determinant. And you will apply the property n-1. What is the value of determinant a? It is 5. Order is, it is 25. प्रॉपर्टी प्रूव की थी a इंटू एडजॉइंट a और एडजॉइंट a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू i। इसी रिजल्ट को यूज करके मैं इनवर्स निकालूंगा। अब देखो, अगर यहां पे डिटर्मिनेंट a है, अगर मैं ये डिटर्मिनेंट a को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां ले आऊं या इसमें ले आऊं, दोनों तीनों इक्विवेलेंट है। अब ये तीनों इक्वल चीजें हैं, तो अगर मैं नीचे ले आया तो ये बन जाएगा। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि दो मैट्रिक्सेस का प्रोडक्ट अगर I बन रहा है
दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आई बन रहा है, अगर ये ए है तो ये कौन सी होगी, इट विल बी द इनवर्स मैट्रिक्स। तो ये आपके पास क्या होगा, ए इनवर्स। तो इनवर्स ए इनवर्स विल बी गिवन बाय एडजॉइंट ए ओवर डिटरमिनेंट ए। कंडीशन सिर्फ एक है कि यहाँ पे ए नॉन सिंगुलर होनी चाहिए, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की मैंने डेफिनेशन क्या बताई है, इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो। ये जीरो नहीं हो सकता, ठीक है ना, नीचे हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो आपके पास इसमें ये नीचे ले आया। अब दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन अगर आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है तो दूसरा इनवर्स, और वाइस वर्सा ये भी कह सकते हैं। तो ये आपका इनवर्स होगा दोनों में। तो ए इनवर्स इज गिवन बाय एडजॉइंट ए ओवर डिटरमिनेंट ए। क्या आपने एडजॉइंट तो निकाला था, एडजॉइंट क्या आया था इसके पास, 4 - 2 - 3 1। अब ए इनवर्स कैसे निकालते हैं आप, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए ओवर डिटरमिनेंट ए। अब मुझे यहाँ पे डिटरमिनेंट ए की जरूरत है, डिटरमिनेंट ए विल बी 4 - 6, इट इज -2। तो ए इनवर्स इज एडजॉइंट ए ओवर डिटरमिनेंट ए। एडजॉइंट ए इज अ मैट्रिक्स, ध्यान रखना ये, और डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या आई है आपके पास, -2, इट इज -1/2। ये माइनस यहाँ पे आएगा, इसको यहाँ रख देते हैं। दिस इज योर इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। How will you calculate the inverse of this matrix? Inverse of the matrix is given by adjoint A over determinant A. When you will calculate determinant of this matrix, it will be -17. You calculate determinant of A yourself. The determinant A will be -17. Now adjoint A is adjoint is a matrix and determinant is -17. Here you will write -1/17. Now you can multiply -1/17 with each element of a matrix. So this is A inverse.